مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت سلام۔ جتنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پلیز اگر آپ اپنی سیٹس پر بیٹھ جائیں تو ہم اپنی عبادت کو باقاعدہ طور پر شروع کر سکیں۔ میں آپ سبوں کو ایشین ہاؤس گروپ کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے نام کو جلال دے سکیں، اس کے نام کی تمجید کر سکیں، اس کے نام کی بڑائی کر سکیں۔ میں خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گی زبور 105 اس کی پہلی 7 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کا بیان کرو اور اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے اور اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ مہربان زندہ جلالی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند باپ آسمانی، اور خداوند اس گھڑی کے لیے اور اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دیا پیارے باپ آسمانی، کہ ہم تیرے گھر میں آ کر تیرے نام کو جلال دے سکیں، تیرے نام کی بڑائی کر سکیں، تیرے نام کو اونچا کر سکیں۔ خداوند تو حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیری برکات کے لیے خداوند شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند باپ آسمانی، میں تیرے تمام لوگوں کے لیے خداوند، تیرے بچے اور تیری بچیوں کے لیے، تیرے بیٹوں کے لیے، تیری بیٹیوں کے لیے خداوند جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہے خداوند، تو ان سب کے ساتھ ہو خداوند، جو راستے میں ہے خداوند ان کی محافظت کر، اور اے پیارے خداوند تو ان کو یہاں پر لے کر آ خداوند، تاکہ جو برکات خداوند تو نے آج ہم سب کے لیے رکھی ہیں خداوند، وہ ہم لے کر اپنے گھروں کو جائے خداوند باپ آسمانی، اور تیرے نام کو جلال مل سکے خداوند باپ آسمانی۔ تو اپنے لوگوں کو گھیر تاکہ اے پیارے خداوند تیرے گھر میں آ کر تیرے نام کو جلال دیں اور تیرا گھر بھر جائے خداوند باپ آسمانی۔ تو اب باپ آسمانی ہم سب کے ساتھ ہونا خداوند، عبادت کے شروع سے لے کر خداوند آخر تک خداوند ان سب کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں خداوند باپ آسمانی۔ جو بھی آج کلام کی خدمت کرے، جو جو خدمات خداوند تو نے ہمیں سپرد کی ہیں خداوند، ہم باخوبی ان کو اے پیارے خداوند سر انجام دے سکے خداوند۔ سب کچھ مانگتے تیرے زندہ قادر اور جلالی نام میں، آمین۔ اب ہم اپنی ورشپ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے میں کوائر سے درخواست کروں گی کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ورشپ سانگ محفل مسیحا کی جو پہلا گیت ہے ہمارا، وہ خداوند کے حضور میں گائیں۔ اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ اگر کھڑا ہو کر اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی بھرپور طریقے سے خداوند کے نام کو جلال دیں، کیونکہ ہم تو ستائش پر جب اس کا تخت لگتا ہے تو فرشتگان بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم سب بھی جو ہے اس سے برکت پاتے ہیں۔ تو اوور ٹو گاڈ۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ پہلا گیت گائیں گے محفل مسیحا کی۔ آج ہم مسیحا کی محفل میں ہیں، تو آئیے ہم اس کو ویلکم کریں اپنی زندگیوں میں، جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہمیں ہوتی ہیں اسے اس کے حضور لے کر آئیں۔ جب ہماری تھکان، ہمارے برڈنس، اپنی سب چیزوں کو خدا ان کے حوالے کریں۔ مسیحا کی شام بھی مسیحا کی
پاک روح سے بھرنے کے لیے آئے ہیں. خدا کا دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرا پاک روح بھرپور جنبش کرے. مسیحا ہی سہارا ہے, مسیحا جان سے پیارا ہے, گناہ کا کفارہ ہے, زندہ خدا. مسیحا ہی سہارا ہے, مسیحا جان سے پیارا ہے, گناہ کا کفارہ ہے, زندہ خدا. خداوند اس پر نظر ہے خدا تو ہمارا فخر ہے خداوند. تھینک یو لارڈ. نظر ہے مسیحا پر, فخر ہے مسیحا پر, ایمان مسیحا پر, مسیحا دعا. نظر ہے مسیحا پر, ایمان مسیحا پر, مسیحا دعا. مسیحا سے ملیں گے, مسیحا سے کہیں گے, اے گیت گائے آئے ہیں ہم. مسیحا کی
All through the song, your love, the anchor, my always in Thank you, choir, for the beautiful songs. Thank you. आप बैठ सकते हैं, तशरीफ रखिए। खुदा उनका शुक्र है कि वो हमारी आवाज़ों को सुनता है और जब हम उसके नाम को जलाल देते हैं तो बेशक वो उसका कान जो है हमेशा हमारी तरफ झुका रहता है। अभी वक्त है कि हम थैंक्स गिविंग जो है वो खुदा के हुजूर में लेकर आएँ और मैं जानती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब के पास कोई ना कोई थैंक्स गिविंग जो है वो ज़रूर है। तो अब वक्त है कि हम अपने खुदावंद के आगे उसके मज़बा के ऊपर जो सज चुका है उस पर अपनी थैंक्स गिविंग्स को लेकर आएँ। तो आप मुझे बताएं, मैं आपके पास माइक्रोफोन लेकर आ सकती हूँ और या फिर आप आगे आकर भी अपनी थैंक्स गिविंग जो है वो दे सकते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल। मैं इस साल इज़राइल जाना चाह रही थी लेकिन कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने सब अरेंज किया और टिकट बुक हो गए। सो वी आर फ्लाइंग इन नवंबर। सो थैंक्स गॉड फॉर दैट होल हेल्प एंड फाइनेंशियल फुलफिलमेंट। Thank you so much. Anyone else? हाँ जी, आइए। Good evening. मेरा वेडनेसडे को थ्योरी टेस्ट था ड्राइविंग का एंड आई क्लियर इट विद रियली गुड नंबर्स, सो आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट मेरा टेस्ट क्लियर हो गया इन फर्स्ट गो, सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। थैंक Praise यू। the Lord. Thank you so much. Nice. Anyone else? हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो। बस खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ हर एक बात के लिए हमारी ज़िंदगी में। एवरी डे वी ब्रीथ, वी ईट, वी गो टू वर्क एंड कीप अस सेफ एंड प्रोवाइड एवरीथिंग। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो। सरवत ने थैंक्स गिविंग दी है, मैं भी खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। हम सब इस साल जाना चाहते थे इज़राइल, बट खुदावंद का शुक्र है कि एटलीस्ट अमन एंड जोल के आर गोइंग विद नदीम भाई और सरवत। सो खुदावंद का शुक्र है। और दुआ में भी सब याद रखें और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद ये सब विज़िट जो है इनके लिए फ्रूटफुल हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने जब इस साल अनाउंस किया था तो भी आई गॉट सो मैनी नेम्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आपको पता है जब फाइनेंशियल इश्यूज थे, कोरोना पेंडेमिक की वजह से पीपल जस्ट टेक देयर नेम आउट। 13 पीपल जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं एंड अबाउट 15 पीपल आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका। ऑल टुगेदर वी हैव 52 पीपल, सो इट्स अ रियली बिग ग्रोथ। सो खुदावंद के नाम को जलाल अपनी दुआओं में याद रखें। जवान बच्चे भी जा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जो है कपल्स भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो इस सारे टूर को हमारे साथ रखें। सिस्टर नगीना बैठी हैं, सिस्टर नगीना इज़ गोइंग विद अस एज वेल। तो अपनी दुआओं में याद रखें। What I do every time when I go, I will take my church address book with me. And जब मैं जाता हूँ वेलिंग वॉल के पास, I remember each and every person who coming in our fellowship, who coming in our church, कि खुदावंद उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सबको बरकत दे। और अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट होंगी तो प्लीज़ गिव इट टू मी, आई विल टेक योर रिक्वेस्ट टू द वेलिंग वॉल। थैंक यू। थैंक यू नदीम भाई। किसी और के पास थैंक्स गिविंग है तो प्लीज़ आप आ सकते हैं, वरना फिर हम दुआ करेंगे इन सारी शुक्रगुजारी को। मैं भी थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जैसे तायरा ने कहा कि उसने हमें बड़ी बरकत दे रखी हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि क्या ही भला है उसका शुक्र जो है अदा करना। तो जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो उसमें भला किसका होता है? हमारा या खुदा का? हमारा भला होता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद जो है वो भला है, हमें उसका शुक्र जो है वो हर वक्त अदा करना चाहिए। तो आए सारी हाँ आज 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 Good evening, everyone. Thanks God. Actually घर पे लगे हुए थे बिल्डर्स
اور سارا ٹائلنگ پیچھے پورا گارڈن جو ہے وہ ٹائلنگ کرایا, آگے سے کروایا, کچھ پینٹ کرایا کمروں میں, کارپیٹ نیا ڈلوایا, بیڈ یہ وہ, یعنی کہ اس وجہ سے میں آلموسٹ کافی دفعہ میں آ ہی نہیں سکی فرائیڈے کو بھی, کیونکہ اتنا بزی ہونا, ان کو چائے بنا کے دو, ان کو یہ کرو, وہ یو نو ویری ویل کہ جب بلڈرز آ جائیں ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر گھر سے. تو کل فنش ہوا ہے اور کل وہ گئے ہیں, اور تھینکس گاڈ ایوری تھنگ واز ڈن. تھینک یو. تھینک یو نیلم باجی, تھینک یو. ابھی وقت ہے کسی اور. ہاں جی, آئیں مجھے پتہ سب کے ساتھ بہت ساری, سب کے پاس شکر گزاریاں ہیں, اپنے دل میں نہ لے کے جائیں, خدا ان کے حضور میں رکھیں. ساری جماعت کو میری طرف سے اسلام. میرے پاس 2 شکر گزاری ہیں. سب سے بڑی اینجل کل اپنے 14 سال کی ہو جائے گی. خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے زندگی دی, تندرستی دی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سرد نرم گرم سب چلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ, تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کی زندگی کے لیے. اچھا, اور دوسری گواہی میرے پاس ہے. میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں یہاں پہ آنا, لیکن اس نے میرے کو کافی جھنجھوڑا. ٹیوزڈے والے دن میں جب کام پہ گیا ہوں تو وہاں پر ایئر سائڈ کے اوپر رن وے کے بالکل ساتھ جو ہے نا ہماری 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور جو 2 ڈرائیور چلا رہے تھے وہ کافی, ایک تو بہت زیادہ شدید زخمی ہوا. تو ہم سارے پریشان تھے کیونکہ میں لیٹ میں گیا تھا اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیا ہیلی کاپٹر آیا, اس نے اس کو ایئر لفٹ کیا, سنگھ لڑکا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ, میں تو اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ چوٹ نہ لگے, کیونکہ اس کی زیادہ جو تھی, اس کی گاڑی کے پیچھے جو ہے نا تقریباً اراؤنڈ 20 ٹن وزن تھا اس کی گاڑی پہ. جب وہ ایک گاڑی دوسری گاڑی کو ٹکرائی ہے تو وہ جو لوڈ تھا وہ سارا ایسے کھڑا ہو گیا تھا, اور لوڈ کھڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارا لوڈ تھوڑا رن وے کے اوپر گر گیا, جس کی وجہ سے ہم کو ایئر فیلڈ بھی بند کرنا پڑی. وہ ایک بڑا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے گھر پہ بھی آ کے ذکر کیا کہ یار سنی کو چوٹ لگی ہے, پتہ نہیں اس کا کیا, کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہا. اچھا, سنی کو جب ہم نے ٹرائی کیا تو بالکل کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. پھر ایک اور آدمی کے پاس اس کے ڈیڈ کا نمبر تھا, ہم نے ان کو فون کیا, وہ بھی نہ اٹھائیں. اب ہم کو سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. ساری شفٹ میں ہم بس یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار تا کرے کہ ٹھیک ہو. اس کو چوٹ اگر لگی بھی ہے, کیونکہ جس حالت سے اس کو ٹک میں سے نکالا گیا تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کافی سیریس ہو جائے گا معاملہ. تو میں اب دل میں بڑے خدا کا شکر گزار تھا کہ خداوند ایٹ لیسٹ اس کو جان تو بچ گئی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم کو فون آیا اس کے گھر سے, اس کی سسٹر نے فون کر کے بولا نہیں سنی ٹھیک ہے, سنی ہوش میں ہے. سنی کو MRI کیا ہے, سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو کوئی خراش نہیں آئی. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس کی زندگی کے لیے کہ خدا نے اس کو زندگی دی ہے. اس کا شاید میرا خیال ہے کہ کچھ 1.5 سال کا چھوٹا بچہ ہے, تو میں خداوند کے شکر گزار ہوں. تھینک یو کامران. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کام پر ہوتے ہیں, ورک پلیس پر ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بات کر کے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اینجل کے لیے خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے اس کو ایک اور سال جو ہے وہ دیا ہے. اور کوئی ہے تھینکس گیونگ, ورنہ ہم دعا میں جائیں گے. میں روزلین باجی سے درخواست کروں گی کہ وہ پلیز سامنے آئیں اور ان شکر گزاریوں کے لیے دعا کریں پلیز. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. قدوس قدوس رب الفاج,
आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदाया इस वक्त के लिए, इन लम्हों के लिए कि खुदावन तूने एक दफ़ा फिर से अपनी बारगाहों में, अपनी चरणों में और अपने घर में लाया। खुदाया तेरा शुक्र अदा करती हूँ उन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो खुदावंत इन्होंने तेरे सामने रखी, तेरे मज़बे पे। खुदाया इनको बड़ी बरकत दे। खुदाया ख़ास तौर पे मैं उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम बड़ों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंत तेरे हजूर खुश होके अपनी तमाम खुशी का इज़हार तेरे सामने रखते हैं, और खुदाया तेरे हुजूर तमाम ये नजराने उस बखूर की माने तेरे हुजूर पहुँचने वाले बने। तो अपना हाथ बढ़ा, इन बच्चों को बरकत दे, इनकी ज़िंदगियों में जो तू बड़े बड़े काम करता है। तू मौज़ात का बाप है, तू नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला बाप है, और हर चीज़ पर खुदाया हम तुझे मुबारक ठहराते हैं। खुदाया तूने हमारे लिए हर वो रास्ते खोले, हमारे लिए तमाम उम्मीद, आस, भरोसा, ईमान खुदाया अपने ज़िंदा जलाली बाप के साथ है। और कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसा माबूद नहीं जिसके आगे हम सिजदा कर सकें, प्रस्तिश कर सकें, क्योंकि तू देखता भी, सुनता भी और छूता भी है, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा बाप है। आए खुदावन, शुक्रगुजार हैं उन सारी बातों के लिए जो आज तेरे सामने रखी गई। आज तेरे घर से खुदावन बहुत सी बरकत लेकर जाने वाले बने। तेरा बंदा खुदाया जो कलाम सुनाए उसको लें, उस रोटी को खाकर खुदाया हम सैर होने वाले बने। हम दुनियावी खुराक के भूखे ना रहें, बल्कि तेरे भूखे रहें, और हमेशा खुदाया तेरी बताई हुई उन रास्तों पर, तेरे बताए हुए जगहों पर पहुंचने वाले बने। खुदावंद, हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए वो मंजिल, वो विक्ट्री स्टैंड बना के रखा हुआ है, ताकि खुदाया हमने अपने घोड़े तैयार कर दिए हैं, लेकिन फतह भी खुदावंद तेरी तरफ से है। ऐ खुदाया आज की तमाम शाम में तो हमारे साथ हो। हमारा हमदो सताइश करना, गीत गाना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना खुदाया तुझे अच्छा लगे तो हमें मुबारक ठहरा। तू मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर, मांगती हूँ तेरा पाक प्यारा मीठा नाम लेकर, आमीन। हालेलुया। कादर मुतलक ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। खुदावंद खुदा, हम तेरे आगे झुकते हैं, तेरे तख्त के सामने सरनगू होते हैं, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं तू हमारी दुआ को सुनता है। तूने कहा मुंह खोल, अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा, गड़गड़ाओ तो मैं उसे सुनूंगा। खुदावंद तू हमारी दुआ को सुनता है जलाल के बादशाह। मैं तेरा शुक्र करती हूँ हर उस घड़ी के लिए, हर उस लम्हे के लिए खुदावंद जो तू हमें बख्शता है खुदावंद। और खुदावंद खुदा, हम तेरे साथ चलते हैं। तूने कहा वफादारी से, रूह और सच्चाई से जो मेरे साथ चलते हैं उनको मैं कभी खुदावंद तू शर्मिंदा नहीं होने देता। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो जलाल के बादशाह। तू अजीम है, तू रहीम है खुदावंद, तू हमारी सिपर है, तू हमारी ढाल है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, दिन रात उठते बैठते जागते सोते खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। इस ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए खुदावंद जो सबसे बड़ी नेमत है तेरी तरफ से खुदावंद खुदा। तेरी आंखें चारों तरफ लगी रहती हैं और तू चाहता है खुदावंद कि हम तुझे पुकारें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए,
तेरे लोगों के लिए खुदावन जो इस वक्त सब इकट्ठे हैं, और खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम खुदावन तेरा शुक्र कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी जय जयकार कर सके। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन। बाप आसमानी दुआ करती हूँ खुदावन उन सब शुक्रगुजारियों के लिए खुदावन जो तूने सुनी, जो तेरे तख्त के सामने रखी गई। खुदावन शुक्र करती हूँ खुदावन खुदा बच्ची के लिए, खुदावन एंजल के लिए, उसे तूने एक और नया साल बख्शा। खुदावन जिस तरह वो गोश्त और खून में बढ़ती है खुदावन, तेरी पहचान में, तेरे रूह में आगे बढ़े। खुदावन उसको खुदावन अपने खून में छुपा, और खुदावन जो भी उसकी तकलीफ़ है यीशु अपना हाथ बढ़ा के उसे दूर कर। जलाल के बादशाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ नदीम भाई के लिए, सरवत के लिए, और खुदावन जितने लोग, नबीला के लिए खुदावन जितने लोग जा रहे हैं इज़राइल, बाप आसमानी उनके जाने में, उनके सफ़र में खुदावन तेरे पाक फरिश्ते, तेरा पाक रूह और तू खुद उनके आगे आगे होना। खुदावन जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े खुदावन वो बाइस बरकत साबित हों। और खुदावन खुदा जितने दिन वहाँ रहे बाप आसमानी तो उनकी हिफाजत करना, हर किस्म की परेशानी से बचा के रखना। जलाल के बादशाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ रूबी के लिए खुदावन जो आज तेरे हजूर तेरी खिदमत कर रही है। खुदावन खुदा इसको और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा अपने मस्सा में लेके जाना। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी ज़बैदा के लिए, हनीफ भाई के लिए खुदावन जिन्होंने खुदावन आज तेरे घर में खुदावन खुदा शुक्रगुजारी दी है, उनको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदावन खुदा। हम सब के साथ हो, बच्चों के साथ हो खुदावन, और अपने रूह से मसा कर खुदावन, अक्ल और दनाई दे ताकि जो भी हम कलाम में से आज सुने बाइस बरकत साबित हो और 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। थैंक यू रोजलिन बाजी और नीलम बाजी, बहुत शुक्रिया। हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये वक्त है कि हम अपनी सप्लिकेशंस जो हैं, हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो खुदावंद के हजूर में लेकर आ सकें। तो जो भी आपके दिल में कोई दरख्वास्त है, जो भी आप खुदावंद के हजूर में रखना चाहते हैं, अभी वक्त है कि हम अपने दिलों को जो है वो खुदावंद के हजूर उंडेलें और अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद के हजूर में लेकर आएँ। शनीला बाजी, सरवर, जुबैदा, साइमन, अनस्पोकन जी, कोई और? हाँ जी, किसी और की कोई दरख्वास्त? कम अनस्पोकन, ओके। जेडन की भी अनस्पोकन रिक्वेस्ट। खुदावन जो है वो हमारे दिलों के हाल को जानता है, चाहे हम उसको बोलकर उसके हजूर में ले आएं, चाहे अपने दिल में रख कर उसके हजूर में हम दुआ कर सकें। खुदावन जो है वो भला है और वो हर तरह से हमें जानता है, क्योंकि उसने हमारी शक्ल अपनी हथेली पर खोद रखी है। तो खुदावंद का इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जिन्होंने भी अपने दिल में ये जो अनस्पोकन रिक्वेस्ट मेरी भी उसमें है, तो जिन्होंने अपने दिल में ये रखा और अपने दिल में ये ख्वाहिश की और उस जो रिक्वेस्ट को है खुदावंद के हजूर में अपने दिल को खोला है, मेरा पूरा यकीन है कि खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को सुनने पर कादर है। और मेरा यकीन है कि अगले हफ्ता में ये जो अनस्पोकन रिक्वेस्ट्स हैं ये हमारे लिए शुक्रगुजारी के तौर पर हम खुदावंद के हजूर में लेकर आ सकेंगे। मैं बाजी अरशाद से दरख्वास्त करूँगी कि इन सारी जो सप्लिकेशंस हैं, थैंक्स की दरख्वास्तें हैं, इनके लिए खुदावंद के हजूर में दुआ करें। अरशाद बाजी प्लीज़। आँखें बंद करें, दुआ करें। बैरबार के खालक और मालिक जिंदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं दिल की गहराइयों से खुदावंद। और ए खुदावंद इस महफिल के लिए खुदावंद जो आई खुदावंद तेरे नाम के लिए सजाई गई है, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। यीशु नासरी में तमाम ए खुदावंद अनस्पोकन रिक्वेस्ट को जो भी खुदावंद जिसके भी दिल में है
تو जानता है खुदावंद, तो दिलों से वाकिफ़ है, तो हर एक ज़हन को और हर एक दिल से वाकिफ़ है कि हम किस चीज़ के खुदावंद चाहते हैं और क्या हम चाहते हैं खुदावंद, और हमारी क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या हमारी परेशानियां हैं खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है खुदावंद। जब भी हम तेरे पास आ जाते हैं तो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है खुदावंद। तो अपने रहम वाला हाथ बढ़ा करे खुदावंद, एक एक की दुआ को सुनना है खुदावंद, एक एक की खुदावंद दुआ पर कान लगाना है खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए फिरे खुदावंद। तो मुबारक यीशु है, जब हम तेरे चरणों में आकर गिर जाते हैं तो हमें कभी परेशान नहीं होने देता है खुदा। ऐ खुदावंद इस तरह मैं सबकी परेशानियों को जिसके दिल में भी जो बात है खुदावंद तेरे से मांगती हूँ, और ऐ खुदावंद अपनी भी खुदावंद तेरे सामने तेरे मज़बा पर रखती हूँ खुदावंद। तो खुदावंद दुआओं का सुनने वाला बाप है, तो मेहरबानी करना और हर एक की खुदावंद दुआओं को सुनना। आए खुदावंद तू हमारी परेशानियों से वाकिफ़ है, तो हमारे दिलों से वाकिफ़ है खुदावंद। मैं एक एक को तेरे पाकों में छुपाती हूँ, तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हम सब पर की है खुदावंद। गो आए खुदावंद मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन फिर भी तू हमें संभालता है और हमें कभी खुदावंद गिरने नहीं देता, हमेशा हमें गले लगाता है, उठा खड़ा करता है। मैं इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, तमाम इबादत के लिए खुदावंद, इस हमदोस्ताइश के लिए, और जितने हम जहाँ पर बैठे हैं खुदावंद सब के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। और कोई भी आए खुदावंद खाली हाथ इस घर से ना जाए खुदावंद, सब आए खुदावंद झोली भर कर इस घर से उठें खुदावंद। तो हमारी कमज़ोरियों को माफ़ कर और हमें अपने साथ चलने का बड़ा गहरा फजल बख्श दे करे खुदावंद। इस वक्त है खुदावंद तो हमारी दुआ को सुनो और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं शनाज बाजी से दरख्वास्त करूँ कि वो सामने आए और प्लीज़ दुआ में रहना मिल दुआ करें। कदूस कदूस नहीं खुदावंद, तू जो नहायत ही प्यार से भरा हुआ खुदा है, और तू जो कादिर मुतलक है, तू जो दूर और नज़दीक का खुदा है, और जो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ और इस वक्त सारी जमात के साथ मिलकर खुदा तुझे झुक के सजदा करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है और खुदा तो हमेशा हमें जवाब देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें कभी मायूस भी नहीं करता। आज के इस दिन के लिए, सारी सलामती के लिए, सारे रहम और फजल के लिए जो तूने हमारे साथ किया कि हम सब मिलकर तुझे मुबारक कह सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। सारी जमात को बड़ी बरकत दे और तुम्हारे दिलों को जो जानता है खुदा, जो तूने हमारी दरख्वास्तों को पहले से ही सुन लिया है, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। आए खुदावन अपना हाथ बढ़ा के खुदा उन सबको अपनी तसल्ली और इत्मीनान देकर रुखसत करना, और खुदा इस बात की हमें गवाही देने का फजल देना कि तू कादिर मुतलक है और हमारी सुनता है और जवाब भी देता है। वापस मानी एक एक बहन भाई को तेरे हुजूर में याद करती हूँ और खुदा तेरे पाक मज़बा के आगे रखती हूँ। खुदा बाप अपना हाथ बढ़ा और बड़ी बरकत दे और हमें और ज़्यादा अपने में झुकने का फजल दे। हमारे गुनाहों कसूरों को माफ़ कर, क्योंकि खुदा तेरे बेटे के उस खून को लेकर हम तेरे तख्त के सामने आए हैं। खुदा हमें पाक कर, हमारे होंठों को छू, हमारे दिलों को पाक कर, ताकि खुदा वो दुआएं, वो मनाजातें जो हम लेके आए हैं वो कबूल हों। वापस मानी बड़ी बरकत दे। आज की सारी मीटिंग को खुदा अपने पाक हाथ में ले, हमारा दुआ करना, सलाम सुनना खुदा बायस बरकत हो और खुदा तुझे जलाल देने का बायस हो। तो मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू शनाज बाजी।
आइए हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के हजूर में अपने पाँव पर खड़े होकर क्वायर के साथ मिलकर खूबसूरत गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। और मेरा यकीन है कि जब हम गीत गाते हैं तो उसका जो रूह है वो हम में भर जाता है और उसका रूह जो है वो यहाँ पर मंडलाता है। मैं पूरा यकीन करती हूँ कि हम सब इस गीत को गाकर बरकत पाएंगे। चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता जल्दी कोई बात करे, गीत गाता रहूं। जोर जोर से ताली बजाते रहें।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझमें गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझमें गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जलाल गाता रहे। जलाल गाता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे पाक रूह की जुम्बश के लिए, तेरे प्यारे प्यारे खुदावन तेरी इस बरकत के लिए खुदावन तो अपने गीतों के ज़रिए अपने कलाम के ज़रिए हम पर नाजिल करता है। थैंक यू सो मच फॉर इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों को ये गीत पसंद है। इसकी वर्डिंग जो है वो ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। लाइक मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब वो हमें ऐसे गीत देता है कि जिसके ज़रिए से हम बरकत पाते हैं और खुदावंद का रूह जो है वो हमारी ज़िंदगियों को छूता है और हमारे अंदर काम करता है खुदावंद के नाम को चला। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम के लिए तैयार हों और मैं शमीम बाजी से दरख्वास्त करूँगी कि वो बाइबल मीटिंग जो है वो आज की वो हमारे लिए पेश करें। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे क्रंथियों के नाम का ख़त पौलुस रसूल का, उसका 10वां बाब, उसकी 11 आयत से लेके 11 to 13 का। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों को नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो ख़बरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है और वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। सेकेंड रीडिंग के लिए आई रिक्वेस्ट सयाना टू कम एंड डू द बाइबल रीडिंग प्लीज। Good evening. Today I'm going to be reading chapter 10, verse 11 to 13. Corinthians 1. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He
will also provide a way out so that you can endure it. This is the word of the Lord. थैंक यू सयाना एंड शमीम बाजी फॉर द बाइबल रीडिंग। अभी वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें और खुदावंद जो चाहता है कि आज बरकत हमें उसके कलाम से, उसके बंदा के वसीला से, उसके ममसू के ज़रिया से हमें मिल सके। जो खुदावंद ने कलाम आप अपने बंदा को दिया है वो हम तक पहुँचाए। मैं छोटी सी दुआ करूँगी और फिर मैं नदीम भाई आपको दावत देती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तू जो भला है खुदावंद बाप आसमानी और तेरी निगाह हम पर हर वक्त रहती है खुदावंद। इस वक्त प्यारे खुदावंद तेरे बंदा को, तेरे ममसू को खुदावंद तेरे हजूर में लाती हूँ खुदावंद बाप आसमानी। छूना और प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह से भरना खुदावंद, ताकि खुदावंद जो कलाम आज वो हमें प्यारे खुदावंद देते हैं खुदावंद वो हमारे दिलों पर असर करने वाला हो खुदावंद। और प्यारे खुदावंद हम इस खूबसूरत बरकत को लेकर अपने घरों को जा सकें खुदावंद। मांगती तेरे जिंदा और जलाली नाम से नदीम। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दी है कि खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत बातों को सीखें, उसकी इबादत करें, उसकी वर्शिप करें। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद, तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद कि अपने वादा के मुताबिक तो यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। खुदा आज का कलाम खुदावंद मेरी ज़िंदगी के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए खुदावंद खुदा भरपूर बरकत का बायस हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो ख़बरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है और वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आज जो हमारा मजमून है वो है कि एक मसीही कैसे अपने आप को ठोकर लगने से रोक सकता है। कैन आई हैव अ स्लाइड प्लीज? Just put the slide on the main screen and yes. How to recover when you stumble in your Christian walk? कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले चर्च में एक भाई हमारे बड़े हार्दर अजीज़ भाई हैं, वो सर्विस में आए और मैंने देखा उन्होंने ना अपने हाथ के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी, दोनों हाथों पे पट्टी बांधी हुई थी। एंड मैंने जब उनसे पूछा तो वो आ रहे थे तो थोड़ा लंगड़ा के चल के आ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है कि अगर आप पेवमेंट से ठोकर खा के गिरते हैं तो आप तो कंप्लेन कर सकते हैं काउंसिल को कि क्यों ऐसा हुआ। तो हम गए उस जगह को देखने के लिए जहाँ पे उन्होंने वो ठोकर उनको लगी थी और वो गिर पड़े थे। तो जब हम गए, आपको पता है देयर इज़ अ लॉ कि वो जो पेवमेंट है, आप अगर उसको पामाइश करें 50p के कॉइन के साथ और वो 50p का जो हाफ है उससे वो ज़्यादा हो, सो यू कैन कंप्लेन, यू कैन सू द काउंसिल कि उनकी जो उन्होंने रोड बनाया है वो प्रॉपर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दैट एक्सीडेंट हैपेंड। हमने उसको पमाइश किया, हमने पिक्चर्स उनको भेजी और एनीवे दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ़ औक़ात में हम स्टम्बल हो जाते हैं, हम ठोकर खा जाते हैं, हमें चोट लग जाती है और हम बाज़ औक़ात गिर भी जाते हैं। हमने देखा बाजी रोजलिन जब आई थी यहाँ पे चल के तो उनके हाथ में एक बड़ी अच्छी स्टिक है। कैन आई सी योर स्टिक? कैन आई टेक इट? बड़ी अच्छी स्टिक है। ये स्टिक के चार उन्होंने उसके जो क्या कहना चाहिए
जो पाँव हैं या जो फीट हैं वो उन्होंने बनाए हैं ताकि ज़्यादा स्टेडी हो. सिंगल जो आपकी स्टिक होती है उससे ज़्यादा फर्म है ये. आप अपना पूरा ज़ोर जो है क्या कर सकते हैं, इस पे डाल सकते हैं, इसके साथ चल सकते हैं. बाजी शमीम जो है वो भी यूज़ करती हैं स्टिक. और बाज़ औक़ात हम सब मुख्तलिफ़ औक़ात में जो चलें वापस ले जाता हूँ आपको, टेक यू बैक ईयर्स बैक. जब हम छोटे थे हमने चलना सीखा था तो कई दफ़ा हमने ठोकर खाई होगी और ठोकरें खा खा के हम क्या हो गए, हमने सीखा, चलना सीखा. और हम आज जवान हैं और अपने बच्चों को देखते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा ख्याल करो. यहाँ पे हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम मोस्टली लगाते हैं, कॉशंस लगाते हैं कि जी ये गीली जगह है, यहाँ पे पानी है, प्लीज़ ख्याल करें स्लिप ना हो जाए. यहाँ ये जब पट्टी लगी हुई है हमने इसलिए लगाई है कि जो तारें हैं इसके साथ कोई ट्रिप ना हो जाए. हम ख्याल करने की कोशिश करते हैं कि कोई इन चीज़ों की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए. मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो बाइस बनती हैं हमारे ट्रिप होने का. एक ट्रिप होने का बाइस हमारा विज़न भी है. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपने देखा होगा मैं चाबी लेके बाहर गया था. एक्चुअली मैं अपनी जो ग्लासेस है वो घर छोड़ आया हूँ. ये मेरी दूर की ग्लासेस है, ये रीडिंग ग्लासेस नहीं है, लेकिन दैट्स फाइन, मैं आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस एज वेल. विजन इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल. बाज़ औक़ात एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि आप देख नहीं पाते अंधेरे के अंदर, लाइट की वजह से नहीं देख पाते, एंड यू हैव अ बिग कोलिजन. बुढ़ापा भी एक ऐसा है आंसर कि हम बाज़ औक़ात ओल्ड एज होने की वजह से भी बाज़ औक़ात हम अपना बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रख पाते और हम क्या हो जाते हैं, हम स्टम्बल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं. इसको हम फिज़िकल स्टम्बल जो है वो हम कह सकते हैं. पुअर बैलेंस बाज़ औक़ात लोगों का होता है, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है. मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टम्बल होने का क्या होती हैं, बायस होती हैं. लेकिन रूहानी तौर पर स्टम्बल, मेरे अज़ीज़ों, मैं आज बात करना चाहता हूँ कि कैसे होता है. रूहानी तौर पर भी बाज़ औक़ात हम स्टम्बल होते हैं. हम जिस्मानी तौर पर तो तवाना होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के अंदर पड़ जाते हैं. आई विल गिव एग्ज़ाम्पल फॉर द यूथ. बाज़ औक़ात यूथ जो है, कल फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था, एक पेरेंट्स जो हैं वो अपने हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे कि जी हम बच्चों को ये जो मोबाइल है वो दे देते हैं. हालांकि वो बच्चों को मोबाइल इसलिए देते हैं कि मम्स जो हैं वो आराम से अपना काम कर सकें और जो उनकी एक्टिविटी हैं वो होती रहें और बच्चा जो है वो बिज़ी रहे. लेकिन एक्चुअली हम अपने बच्चे को आदी कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ का जिसमें से वो अच्छी चीज़ें तो, क्रिएटिव चीज़ें तो सीख सकता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात नेगेटिव चीज़ों को भी सीखते हैं. और इसी तरह जब हमारे बच्चे जवान होते हैं तो दुनिया को देखते हैं तो बजाय इसके कि दे गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, दे गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव. और रूहानी तौर पर वो स्टम्बल हो जाते हैं और उनका ध्यान, उनका जो ज़िंदगी का स्टाइल है वो खुदा से जो है वो दूर जो है वो होता चला जाता है. सिंफुल डिज़ायर्स, टेम्पटेशंस, हमने बुरी आदतें, और बाज़ औक़ात हालात भी हैं. बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में हालात इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं कि रादर दैन वी गो टूवर्ड्स गॉड, वी गो अपोजिट डायरेक्शन. हम लोग मुख्तलिफ़ जो है इतराफ़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हम स्टम्बल हो जाते हैं. बाज़ औक़ात हम वापस आ जाते हैं खुदा के पास, और बाज़ औक़ात जो है वो स्टम्बल इतना हैवी होता है कि वी कांट कम बैक, हम नहीं आते. और बाज़ औक़ात लोग जो है वो खुदा से दूर जो है वो होते चले जाते हैं. हमारी कामयाबी भी बाज़ औक़ात होती है जब हम ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं. then we have proud on our own self, and then we get stumble from God. We stumble spiritually in our lives. तो आज का जो कलाम है वो आज हम सीखेंगे कि रूहानी तौर पर हमने कैसे वॉक करनी है. Can I have my first step, please? First point. Yes. Walk in spirit. रूह में चलें.
खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है वॉक इन द स्पिरिट। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो हम इस बात को जानते हैं कि इंसान ने अपने लिए गुनाह की ज़िंदगी को चूज़ किया और वो गुनाह के अंदर चला गया। दिस वाज द फर्स्ट स्टैम्बल, पहला ठोकर जो इंसान ने खाई, उसने हर पैदा होने वाले इंसान को ठोकर के साथ पैदा किया। हम अगर ना भी चाहें ठोकर खाना तो भी हमारी जिबिलत के अंदर है वो चीज़ें। लेकिन खुदा ने हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और पाक रूह के वसीला से एक नई ज़िंदगी, एक नया जन्म दिया है। पौलुस रसूल जो है वो गलीतियों की कलीसिया गलेशियन से कहता है चैप्टर 5 वर्स 25 में, अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हमेशा दुआ करें और पाक रूह से हदायत मांगें कि वो आपको ज़िंदगी में क्या करे, लीड करे, आपको गाइड करे। जिस तरह जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको बताते हैं बेटा ख्याल करना आप स्लोप से नीचे उतर रहे हैं या आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो दे मस्ट हैव टू पुट ऑन द शेन देयर कि उनको चोट ना लग जाए। शूज़ पहन के जाएं, सर्दी है तो आप अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें पहने। हम ख्याल करते हैं जिस तरीके से खुदा का कलाम हमें भी ये कह रहा है कि जब खुदा ने अपना रूह हमें दिया है, सो लेट्स गिव योर लाइफ टू द स्पिरिट ऑफ गॉड rather than we lead ourselves। हम अपने आप को खुद लीड करें, खुदा हमें लीड करे, खुदा हमें बताए कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे करना है। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 16 में कहता है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब मैंने ये कहा शुरू में कि हम पैदा इस सिचुएशन में हुए हैं कि हम ठोकर खाए हुए पैदा हुए हैं, वो ठोकर हमारी ज़िंदगी के अंदर है। हम जितनी भी कोशिश करें, हमें कोशिश होती है, हमारी हर जो हतमी जो हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि हम चलो हम कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन वो ये कहता है कि पाक रूह के वसीला से अपने आप को खुदा के हाथ में दे। पौलुस जो है वो चर्च को नसीहत कर रहा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी देते हैं, फिर क्या होगा, फिर जो भी टेम्पटेशन आएगी, जो भी बैरियर रास्ते में आएगा, हम इजीली उसको स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसको जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वॉक इन विजडम, अक्लमंदी से चलो, रूह से चलो और फिर रूह से चलो और फिर अक्लमंदी से चलो। मिसाल की किताब और उसका 3 बाब और 21 और 23 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे। जब बेटे का जिक्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटी को नहीं कह रहा, सबके लिए है। मेरे बेटे, है मेरी बेटी, है मेरे बेटे दनाई और तमी और लेट मी क्विकली सी दैट मिसाल। मोस्टली व्हाट आई डू, आई राइट विद माई सेल्फ, लेकिन मिसाल 3 और उसकी 21 और 23 आयत, 21 और 23, ऐ मेरे बेटे दनाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आँखों से ओझल ना होने दे, यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगे। तब तू बेखटके अपने रास्ता पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। खुदा का कलाम कर वाइज मिसाल की किताब में जो लिखने वाला है वो कौन है? सुलेमान। सुलेमान जो है वो अक्लमंद इंसान इस दुनिया का गिना जाता है, ज़हीन तरीन इंसान गिना जाता है, और वो नसीहत करता है कि अगर हमने अपने आप को ठेस लगने से बचाना है, अगर हमने अपने आप को ठोकर लगने से बचाना है, तो फिर हमने क्या करना है? अक्लमंदी से चलना है, अपनी आंखों को खोल के रखना है। हमें देखना है अपने इर्द गिर्द क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक। मेरे इवन अपने बंद कमरे के अंदर भी, डोंट थिंक कि गॉड कांट सी यू इन योर रूम एंड योर बेडरूम और इन योर टॉयलेट, ही कैन सी इवन एनीवेयर। हर जगह पे वो देख सकता है। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है।
اور ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولنے کی ضرورت ہے. پالوس جو ہے افسیوں کے نام خط اس کے 5 باب کی 15 آیت میں کہتا ہے پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو, داناؤں کی طرح, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہیں, برے ہیں. وقت جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو آنے والا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت ہے. ہم نے ایک بڑا مشکل وقت سب نے گزارا ہے. یہ 2 سال جو تھے پینڈیمک کے, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. وی آل ایوری باڈی باؤنڈیڈ ان ٹو دیئر ہاؤسز. ہم لوگ صرف وہ زوم کی میٹنگ اور فیس بک تک رہ گئے تھے. آپ صرف اندازہ کریں اگر دنیا ایسی ہو جائے کیا ہوگا. نمبر 3 ہے واک ان ٹروتھ. سچائی سے چلو, سچائی سے چلو, سچائی سے چلیں کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ کیا ہے, سچائی کا خدا ہے. خدا جھوٹ پسند نہیں کرتا. جب خدا نور ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی نور ہوں, میں اور آپ بھی سچ بولیں, میں اور آپ بھی سچ بولنے والے ہوں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں. نمبر 4 walk as children of light. walk as children of light. نور کے فرزندوں کی طرح چلیں, نور کے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح چلیں. میں نے سب کو کہا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن خدا نے ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے ایک نیا جنم دیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ پرانے گناہ جو ہیں وہ تمام دھل چکے ہیں. وہ معروسی گناہ جو ہے اس سے ہمیں شفا مل گئی ہے. اور اب ہم کیا ہیں, آدم کی وجہ سے ہم تاریکی کے فرزند تھے, لیکن مسیح کے وسیلہ سے ہم کیا ہیں, نور کے فرزند ہیں. پالوس افسیوں چیپٹر 5 ورس 8 میں کہتا ہے کیونکہ تم پہلے کہاں تھے, تاریکی میں تھے, مگر اب خداوند میں نور میں ہو, بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو واک ان دا لائٹ. وہ بڑا خوبصورت ایک سانگ ہے نا, آئی واک ان دا لائٹ آف دا لارڈ. وہ واک ان دا لائٹ آف دا لارڈ ہی یہ ہے, وہ یہ گایا گیا کہ ہم نور کے فرزند ہیں, اس لیے ہم خداوند میں چلتے ہیں. اور جب نور آپ کی اس طرح کی لائٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ کو کہاں ٹھوکر لگے گی, آپ کو نظر آئے گا اسٹیپ کہاں پہ ہے, چیئر کہاں پہ پڑی ہے, آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ صاف نظر آئے گی. کب نظر آئے گی, جب when we act like we are the children of light. ہم لوگ کیا ہیں, ہم نور کے فرزند ہیں. نمبر 5 walk in love. walk in love. محبت سے چلیں, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کی سنیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. That's what we need to do as a Christian. جب آپ کیا کر رہے ہیں, جب آپ walking in spirit, when you walking in wisdom, when you walking in truth, when you are walking as a children of light, then you have to love one another as well. ایک دوسرے کو پیار کرنے کی ضرورت ہے. پہلا جان اور اس کا 2 باب اس کی 9 اور 11 آیت میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, وہ ابھی تک کیا ہے, تاریکی میں. ہم نے پہلے کہا کہ ہم نور کے فرزند ہیں, لیکن آئی ڈونٹ لو پرویز بھائی, آئی ڈونٹ لو پرسی بھائی, آئی ڈونٹ لو اسٹیو. تو پھر کیا ہوا, کتنے گیا نور, وہ بند ہو جڑے ہیں, لائٹ بند, کلیئر, فنش. دین آئی ایم ناٹ اونلی اسٹمبلنگ مائی سیلف, میں دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہوں. جب لوگ مجھے بھی دیکھیں گے آپ بھی ٹھیک نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ, میرے ساتھ ہے نا, آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, محبت کرنی ہے, پیار سے چلنا ہے, برداشت کرنا ہے. جان چیپٹر 13 ورس 34 and 35 میں لکھا ہوا ہے, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. کیا ہے نیا حکم؟ نیا حکم, ایک دوسرے سے محبت کرو. خداوند یسوع مسیح نے کہا کیسے محبت کرنی ہے, جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم کیا ہو میرے. تو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کیسی محبت رکھی.
खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे मोहब्बत रखी, उसको पता है कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ, उसको पता है कि मैं कितना गुनाहगार हूँ, उसको मेरी सारी उन खताओं का, उन परेशानियों का, उन ठोकरों का उसको पता है कि ये क्या क्या करता है, इसने क्या क्या किया है। बट इवन देन, इसके बावजूद मैं गुनाह की हालत में, दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में, जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। बट ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर मी, उसने अपनी जान मेरे लिए दी। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है। हमारी गलतियों के बावजूद, खताओं के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, He loved us. We need to love Him as well. हमें भी एक दूसरे को इसी तरह एक्सेप्ट करना है, इसी तरह प्यार करना है, इसी तरह मुआफ़ करना है। नंबर 6, वॉक वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। हाँ जी, वेरी नाइस। अपनी बुलाहट के लायक चाल चलो या चलन चलो। पौलुस ने एफिसियों में कलीसिया को दरख्वास्त की है कि कैसा चाल चलन होना चाहिए हमारा, हमें कैसे चलना चाहिए, अपनी बुलाहट के मुताबिक कैसा चलना चाहिए, अपनी बुलाहट के लायक कैसे चलना चाहिए। वो कहता है बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, वो अपनी एग्जाम्पल दे रहा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। कैसे चलना है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो खिदमत खुदा ने मुझे और आपको दी है, आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कैसे चलना है? यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो? बर्दाश्त करो, और उसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। ये है वो एग्जाम्पल, ये है वो चीज़ जो खुदा चाहता है। ये बात जो यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को कहता है। हमने रीडिंग की थी आज, फर्स्ट Corinthians chapter 10 verse 11 to 13। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। हम आखिरी ज़मानों वाले हैं। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो ख़बरदार रहे कि गिरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? हम सब ठोकर खाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार हम ठोकर खाते हैं। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा ईमान खुदा पर है, जब हमारी नीयत और हमारा ईमान खुदा पर है, अगर हम भी गिर भी जाएंगे, गलती भी हो जाएगी, ठोकर भी खा लेंगे, तो खुदा क्या करेगा? हमें फिर खड़ा कर देगा। लेकिन इस वर्ष का दूसरा हिस्सा बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन शरीर बिला में गिरकर पड़ा ही रहता है। सादिक क्या होगा? इवन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाएगा। हम देखते हैं खुदा के कलाम में हमने बड़ी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। दाऊद की एग्जाम्पल हमें मिलती है, हमें जेकब की एग्जाम्पल मिलती है, हमें खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत प्यारे शागिर्द पतरस की एग्जाम्पल मिलती है। उसने सबके सामने 3 बार उसका इनकार कर दिया। इट वॉज अ बिग स्टम्बल। मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है, लेकिन क्या हुआ? दे स्टूड अप। पतरस रॉक जिसके ऊपर वो चर्च जो है वो बनाया गया। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 4 बाब की 9 आयत में लिखा है, यानी गिरे तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। इंग्लिश में बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है इसकी, परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन।
struck down but not destroyed. خدا جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے جب ہم واک جو ہے، جب ہمارا چلن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، پاک روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبور 145 اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند گرتے ہوئے کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے، اور جھکے ہوئے کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں روح سے چلنا ہے، عقل مندی سے چلنا ہے، سچائی سے چلنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، محبت سے چلنا ہے، اور اپنی بلاہٹ کے مطابق چلنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے۔ ڈزنٹ میٹر، وی ہیڈ سم ٹائم فال دیئر، ہم گر جاتے ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ صادق کے ساتھ ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ نہایت بزرگ خداوند تیرا شکریہ اور تیرے نام کی تمجید اور ستائش اور حمد خداوند، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، ایک ایک قدم کے لیے جو ہم اٹھاتے ہیں، ایک ایک سانس کے لیے جو ہم لیتے ہیں خدا، ہر اس سوچ کے لیے خدا جو ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں خدا، اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن خدا جو ہمارے زندگی کو خداوند بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں خداوند، ہم اس کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں خدا، اور ہماری زندگیوں میں کئی بار خداوند ہم ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، لیکن خداوند تو ہمیں نہ صرف اٹھا کھڑا کرتا ہے بلکہ خداوند تو انگلی پکڑ کر ہمیں اپنے ساتھ چلاتا ہے خدا۔ میں اس کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، میں بچوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند، اور دعا کرتا ہوں خداوند کہ یہ جو 6 باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں خدا، ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں خدا، اور اپنے چال چلن کو، اپنی واک کو خدا ایسا بنائیں خدا کہ وہ تیرے حضور مقبول ہو خدا، اور ہماری زندگیوں سے خداوند تیرے پوتر نام کو جلال ملے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم زبور گائیں گے مل کر ایک، اور اس کے بعد ہم کلوزنگ پریئر کریں گے۔ آئیے ہم مل کر زبور گائیں گے، او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ۔ ڈھکے گئے سارے اوگن صدا، وہ تن جس بخشے گئے سب گناہ، ڈھک گئے سارے اوگن صدا، نہ رب جس دے پاپاں دا کردا حساب، نہ رب جس دا پاپاں دا کردا حساب، او دن ہے تے دل اس نہیں خراب، او دن ہے تے دل اس دا نہیں خراب، او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈھک گئے سارے اوگن صدا، میں جد چپ رہا میری ہدیاں، میں جد چپ رہا تب میری ہدیاں، کریان ہونے سارا دن جلیاں،
धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा दिन भी तेरा भी मेरे खुदा दिन भी तेरा भी मेरे खुदा तेरा हाथ मेरे उते बारा रहा तेरा हाथ मेरे उठे बारा रहा ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह के गए सारे ओगन सदा मेरी सारी पिघल गई ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओगन सदा तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओगन सदा प्लीज तशरीफ रखें और प्लीज जोरदार तालियां एल्डर रूबी के लिए खूबसूरत तरीके से आज इन्होंने लीड किया और जोरदार तालियां वर्शिप टीम के लिए थैंक यू टू जैनी फॉर चूजिंग द सॉन्ग last two songs they were totally going with my talk so I think this is from the Holy Spirit खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं thank you to Joel and Javed bhai for the AV and PA as well आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और ख़ास करके हम दुआ करेंगे भाई हनीफ के लिए बाजी जुबैदा के लिए जो आज हमारे होस्ट हैं आज की शाम के लिए नहायत बुजुर्ग खुदावंद एक बार फिर तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हमद खुदावंद हम अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद जब ये सर्विस क्लोज़ होने जा रही है खुदावंद हम सब मिलकर फेलोशिप करेंगे खाना खाएंगे खुदावंद हम खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद हम खुदावंद तेरे बंदा के लिए भाई हनीफ के लिए बाजी जुबैदा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद तू उन दोनों को बड़ी बरकत देना सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं उनके इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस के लिए जो बाकी मांदा है खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनके साथ और अपना फजल खुदावंद उन पर कर ताकि खुदावंद वो इस मुल्क में परमानेंटली रहें खुदावंद और खुदावंद भरपूर तेरे नाम को जलाल दें मैं एक बच्चे के लिए भाई और बहन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं एल्डर रूबी माल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की इस मीटिंग को लीड करने के लिए मैं एल्डर साइमन के लिए जेनिफर के लिए सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा जोल के लिए भाई जावेद के लिए खुदा और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिन्होंने आज अपने होंठों को खुदावंद तेरे हजूर खोला खुदावंद तमाम कलीसिया जो आज यहाँ पर मौजूद है खुदावंद मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माने जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारी रोज़ की रोटी आज हमें और जिस तरह हम अपने किस्मों को माफ़ करते हैं तुम हमारे किस्मों में माफ़ कर हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे आमीन अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन दो नोटिस मेरे पास हैं एक तो तमाम एल्डर्स से दरख्वास्त है कल 10 बजे से 1:30 बजे तक एल्डर्स की ट्रेनिंग है प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ कम देयर एंड वी विल हैव अ लंच अबाउट 12 o'clock एज वेल शार्प 1:30 पे वी विल क्लोज इट और इसके साथ ही नेक्स्ट फ्राइडे को भाई मजीद मसीह जो हैं वो हमारे चर्च में आ रहे हैं
اور ورشپ ہوگی. سو آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون پلیز کم اینڈ جوائن اس. اپنے نیبرس کو, اپنے فرینڈس کو بھی پلیز بتائیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے اس خادم کے ساتھ ورشپ کریں. نئے گیتوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے سارے ٹرپ کو وہ آ چکے ہیں, برمنگھم میں ہیں وہ, ان کے سارے ٹرپ کے لیے دعا کریں کہ خداوند جو ہے ان کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. کھانے میں شریک ہوں گے. مجھے سمجھ آ گئی آپ جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. گاڈ بلیس.